السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر، مصنف مظہر کلیم ایم اے، لاسٹ ایپیسوڈ۔ ان دونوں کو اٹھا کر لے آؤ، عمران نے آتے ہی کہا اور پھر واپس مڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد جم اسکاٹ اور اس کا ساتھی بے ہوشی کے عالم میں آپریشنل سیکشن کے فرش پر پڑے ہوئے تھے، جبکہ عمران کے ساتھی حیرت سے اس آپریشنل سیکشن کی مشینری کو دیکھ رہے تھے۔ اسے بیلٹ سے باندھ دو، میرا خیال ہے کہ یہ آپریشنل سیکشن کا انچارج ہے، اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں واقعی معلومات مل سکتی ہیں۔ عمران نے جم اسکاٹ کے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں یقیناً رسی موجود ہوگی، صفدر نے کہا اور تیزی سے ایک سائیڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، رسی ہے، 3-4 بنڈل ہیں اور اسلحہ بھی ہے، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسی کے 2 بنڈل اٹھائے اور اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دیے۔ اندر سے 2 کرسیاں یہاں لے آؤ اور انہیں کرسیوں پر باندھ دو، عمران نے کہا تو جوانا اور تنویر تیزی سے شیشے والے کیبن میں گئے، پھر وہاں سے کرسیاں اٹھا کر لے آئے، پھر ان دونوں کو کرسی کی مدد سے کرسیوں پر باندھ دیا گیا۔ جم اسکاٹ کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی مورے ٹوٹ چکے تھے، اس لیے اسے باندھنے کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی رسک اس وقت نہیں لے سکتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہیں باندھ کر عمران کی ہدایات کے مطابق دوسرے آدمی کو ہوش میں لایا گیا، جسے عمران نے ٹکر مار کر دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش کیا تھا۔ اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس کے سینے پر مشین گن کی نال رکھ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ انتھونی، مجھے مت مارو، اس آدمی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تم آپریشنل سیکشن کی انچارج ہو؟ عمران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن چیف کے حکم کے تابع تھا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر چیف نے حکم دیا تھا، انتھونی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہاں راداری میں کیا ہوا تھا جب ہم بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور تمہارا چیف تمہیں کوس رہا تھا اور تم مشین گن اٹھائے بے تحاشا دوڑتے ہوئے آ رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، شاید تم خوش قسمت ہو، تم بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے چیف کے حکم پر الماری سے مشین گن اٹھا لی اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو تم ویسے ہی بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے چیف کے حکم پر مشین گن تمہاری طرف کر کے ٹریگر دبایا تو پتہ چلا کہ اس میں میگزین ہی نہیں ہے۔ آپریشنل سیکشن میں میگزین علیحدہ رکھا جاتا ہے اور جلدی میں مجھے خیال نہ رہا۔ میں دوڑتا ہوں میگزین لینے واپس آپریشن سیکشن میں آیا، لیکن راشیم گیس کے اثرات بہت کم مدت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے جب میں دوڑتا ہوں میگزین لے کر واپس پہنچا تو تم ہوش میں آ رہے تھے، پھر تم ہم سے ٹکرا گئے۔ انتھونی نے روک کر پوری تفصیل بتا دی۔ عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا، یہ واقعی ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی، ورنہ ان کی موت میں کوئی شک باقی نہ رہا تھا۔ اوہ، کیا مطلب؟ اس مشین گن میں میگزین نہیں ہے؟ اچانک صفدر نے ہاتھ میں پکڑی مشین کو چونک کر دیکھا۔ یہ مشین گن اس نے رسیوں کی بنڈل الماری سے اٹھانے کے بعد اس الماری سے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ پھر واقعی صفدر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مشین گن میں میگزین فٹ ہی نہ تھی، صرف بیرونی کھول ہی موجود تھا۔ اسی بات سے ہماری زندگیاں بچ گئی ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کے حالات بتا دیے اور سب بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئے۔ شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر میں اسپیشل گروپ اور بلوچ شاخ سیکشن کا انچارج گرونو اپنے آفس میں موجود تھا کہ یکلخت آفس کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان متوحش چہرہ لیے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا انداز ہے آنے کا، میک؟ گرونو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ غضب ہو گیا باس، ہیڈ کوارٹر پر پاک ایشیائی ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا ہے، چیف اور انتھونی ان کے قبضے میں ہیں، جبکہ ماسٹر اور اس کا پورا گروپ ہلاک ہو چکا ہے۔ آنے والے نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کون پاک ایشیائی ایجنٹ؟ وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں، چیف سے میری بات ہوئی ہے، گرونو نے بے اختیار اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آئیے جلدی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میک نے اسی طرح تیز لہجے میں کہا اور دوڑتا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گرونو بھی بے اختیار اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ آفس سے نکل کر گرونو قریبی ایک ہال نما کمرے میں پہنچا جہاں دیوار کے ساتھ ایک دیو ہیکل مشین نصب تھی، اس پر ایک سکرین روشن تھی۔ یہ دیکھیں باس، یہ دیکھیں، آپریشنل سیکشن کو دیکھیں، میک نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو گرونو سکرین پر موجود منظر دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر کانوں تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ سکرین پر جو منظر نظر آ رہا تھا اس میں آپریشنل سیکشن کے مین کنٹرول روم میں چیف جم اسکاٹ اور انتھونی کرسیوں پر بندھے ہوئے تھے۔ جم اسکاٹ بے ہوش تھا جبکہ انتھونی ہوش میں تھا اور اس کے سامنے 2 عورتیں اور 5 مرد موجود تھے، جن میں سے 2 آدمیوں کے پاس مشین گنیں تھیں، ان میں سے ایک آدمی انتھونی سے باتیں کر رہا تھا۔ اوہو، ویری بیڈ، اب کیا ہوگا؟ یہ تو ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیں گے۔ میک، کیا تم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ گرونو نے تقریباً ہذیانی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ایک طریقہ ہے میرے پاس، میں انہیں بے ہوش کر سکتا ہوں، لیکن میک نے کہا تو گرونو بے اختیار اچھل پڑا۔ لیکن کیا جو کر سکتے ہو جلدی کرو، گرونو نے چیختے ہوئے کہا۔ چیف ہلاک ہو جائیں گے، میک نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں ہلاک ہو جائیں گے؟ گرونو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بے ہوش ہیں اور جو گیس وہاں فائر ہوگی ان افراد کو تو بے ہوش کر دے گی، جو ہوش میں ہے لیکن پہلے سے بے ہوش آدمی کو ہلاک کر دے گی۔
मैक ने कहा ओहो, हेडक्वार्टर को बचना चाहिए, जो हो सकता है वो करो, देखा जाएगा। ग्रोनो ने कहा बॉस अब स्पेशल ग्रुप का चीफ है, मास्टर और इसका ग्रुप भी हलाक हो चुका है, इसलिए अगर चीफ हलाक हो जाता है तो आप शी डॉग के चीफ बन जाएंगे। मैक ने कहा ओह यू नॉनसेंस, ये क्या पहेलियाँ ले बैठे, तुम फ़ौरन इनको बेहोश करो, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा। ग्रोनो ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा ओके, मैं बस यही बात पूछना चाहता था। मैक ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि ग्रोनो के जवाब से वो बहरहाल समझ गया था कि ग्रोनो चीफ बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था, और चूँकि वो खुद ग्रोनो का नायब था इसलिए लामाला वो पूरी तंजीम का भी नायब बन जाएगा। चुनांचे उसने तेज़ी से मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर झमाके होने शुरू हो गए। फिर इस बार दोबारा ऑपरेशनल सेक्शन के मेन कंट्रोल रूम का मंजर उभर आया। उसी लम्हे मैक ने एक बटन दबाया, फिर मशीन को छोड़कर तेजी से दौड़ता हुआ साइड के छोटे कमरे में चला गया। जबकि ग्रोनो होंठ पीछे खामोश खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैक वापस आया तो उसके चेहरे पर मुसरत थी। अब देखें बॉस क्या होता है, मैक ने कहा और मशीन के नीचे मौजूद हैंडल को पूरी कुव्वत से खींच लिया। दूसरे लम्हे मशीन में तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी, इसके साथ ही स्क्रीन यकलक धुआं हो गई। मैक ने हैंडल छोड़ा तो सीटी की आवाज़ भी बंद हो गई। स्क्रीन पर छाया हुआ धुआं तेज़ी से गायब होने लग गया। अब स्क्रीन पर कमरे में मौजूद 7 अफराद बेहोश टेढ़े बेढ़े अंदाज में पड़े थे, जबकि एंथोनी कुर्सी पर बेहोश पड़ा हुआ था। ओह वेरी गुड, ये कैसे हुआ? ग्रोनो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा बॉस ये इमरजेंसी सिस्टम है जिसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन आज मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है। इस मशीन में यह सिस्टम मौजूद है कि अगर ऑपरेशनल सेक्शन में बगावत हो जाए या वहाँ किसी शख्स का कब्जा हो जाए तो स्पेशल ग्रुप हालात संभालने के लिए वहाँ ये मखसूस गैस फायर कर सकते हैं, और मैंने ऐसा कर दिया है। अब चीफ जिम स्कॉट हलाक हो चुके हैं और आप चीफ बन गए। मैक ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा लेकिन अभी एंथोनी जिंदा है और हो सकता है कि सबमरीन का कैप्टन जैकब भी इस बात की मुखालफत करे। ग्रोनो ने कहा और वो अब पाकिस्तानी एजेंट की तरफ से मुतमिन हो चुके थे, इसलिए अब उसके लहजे में इत्मीनान था। ओके ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम अब शी डॉग की सेकंड चीफ बन जाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। ग्रोनो ने मुस्कुराते हुए कहा शुक्रिया बॉस, मुझे यकीन था कि अब यही फैसला होगा। मैक ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा मैं मार्शल को कॉल करता हूँ ताकि इन लोगों को गोली मारी जा सके। ग्रोनो ने कहा और मुड़कर एक साइड पर पड़े वेंटर काम की तरफ बढ़ गया। मार्शल बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। ग्रोनो बोल रहा हूँ मार्शल। ग्रोनो ने तहकमाना लहजे में कहा ओ यस बॉस, दूसरी तरफ से मदवाना लहजे में कहा गया अपने पूरे ग्रुप को लेकर फ़ौरन मशीन रूम में पहुंचो, फौरी तौर पर मुसल्लह होकर आओ, जल्दी फ़ौरन, इट इज़ मोस्ट इमरजेंसी। ग्रोनो ने तेज़ लहजे में कहा यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और ग्रोनो ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और 8 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। वो सब वर्जिशी जिस्मों के मालिक थे और उनका अंदाज बता रहा था कि वो खासे तरबियत याफ्ता लोग हैं। उनके कंधों से मशीन गनें लटक रही थी। सबसे आगे बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी था, ये मार्शल था, स्पेशल ग्रुप का इंचार्ज। क्या हुआ बॉस? मार्शल ने अंदर आते ही कहा मुझे एक मशीन पिस्टल दो। ग्रोनो ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा तो मार्शल ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और एक मशीन पिस्टल निकालकर उसने ग्रोनो के हाथ में पकड़ा दिया। ग्रोनो ने मशीन पिस्टल का मैगजीन चेक किया, फिर उसने मशीन पिस्टल का रुख साथ खड़े मैक की तरफ किया, ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही मैक चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और तड़पने लगा। मार्शल और उसके साथियों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। नॉनसेंस, हेडक्वार्टर का सेकंड चीफ बनना चाहता था। ग्रोनो ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डालते हुए कहा सेकंड चीफ बनना चाहता था? क्या मतलब बॉस? मार्शल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा सुनो, पाकिस्तानी एजेंट जिनके खिलाफ हम ब्लू शॉक्स को हरकत में लाए थे हलाक नहीं हुए थे, जबकि चीफ ने कहा था कि वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने मास्टर और उसके पूरे ग्रुप को हलाक कर दिया, और चीफ और एंथोनी से रब्ता किया तो पता चला कि वहाँ पाकिस्तानी एजेंटों का कब्ज़ा है, और अब हमने वहाँ खासी बड़ी मिकदार में गैस फायर कर दिया है। उसमें जो शख्स पहले से बेहोश हैं वो उनके असाब नहीं मुर्दा हो चुके हैं, और वो गैस की ज़्यादा मिकदार की वजह से वो हलाक भी हो सकते हैं। चुनांचे मेरे हुक्म पर मैक ने वहाँ गैस फायर तो कर दी, लेकिन उसने जानबूझकर ज़्यादा मिकदार में गैस फायर कर दी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि चीफ हलाक हो जाए और उसकी जगह मैं चीफ बन जाऊँ, और ये खुद शी डॉग का सेकंड चीफ बन जाए, इसलिए मैंने उसे हलाक कर दिया है, क्योंकि सेकंड चीफ बनने के असल हकदार तुम हो, ये नहीं। ग्रोनो ने कहा तो मार्शल में इख्तियार उछल पड़ा सेकंड चीफ शी डॉग का? मार्शल ने इंतहाई हैरत और मुसरत के मिले जुले लहजे में कहा हाँ सुनो, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। चीफ हलाक हो चुका है, मास्टर हलाक हो चुका है, कैप्टन जैकब जूनियर है, फिर वो सब मेरीन का कैप्टन है, जबकि तुम स्पेशल ग्रुप की इंचार्ज हो और मैं सेक्शन का बॉस हूँ। इसलिए अब चीफ की जगह शी डॉग का चीफ मैं बन चुका हूँ और मैं तुम्हें अपना सेकंड चीफ बनाता हूँ, लेकिन तुम्हें
मुझे ये हलफ देना होगा कि तुम हमेशा मेरे वफादार रहोगे। गुरोनो ने कहा तो मार्शल ने यकलख्त हाथ उठाकर इंतहाई जज्बाती लहजे में वफादारी का हलफ उठा लिया। और तुम सब ये हलफ उठाओ कि तुम सब भी मेरे वफादार रहोगे, हेडक्वार्टर में तुम्हारी इज्जत सबसे बढ़कर होगी। गुरोनो ने कहा तो स्पेशल ग्रुप के दूसरे अरकान ने भी हलफ उठाया। अब सुनो, पाकिस्तानी एजेंट ऑपरेशनल सेक्शन के मेन कंट्रोल रूम में बेहोश पड़े हुए हैं। अंथोनी कुर्सी पर बंधा हुआ बेहोश है और चीफ हलाक हो चुका है। हमने वहां पहुंचकर सबसे पहले इन पाकिस्तानी एजेंटों को वहां से उठाकर टॉर्चरिंग हॉल में डालना है, फिर अंथोनी को होश में ले आना है। ओहो, मैक तो हलाक हो चुका है, अब अंथोनी को कैसे होश में लाया जाएगा? गुरोनो बात करते करते अचानक एक ख्याल के आते ही चौंक पड़ा। हाँ बॉस, हमारे पास एक ऐसी गैस है जो हर किस्म का गैस का तोड़ है, मार्शल ने कहा। ओ वेरी गुड, ये हुई ना बात। बहरहाल अंथोनी को होश में लाकर मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे लिए काम करे और हलफ दे, क्योंकि पूरे हेडक्वार्टर में वही मशीनरी को सबसे ज़्यादा जानता है। फिर इन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर दिया जाएगा और उसके बाद शी डॉग की पूरी दुनिया में फैले हुए नेटवर्क को हम कंट्रोल कर लेंगे। गुरोनो ने कहा। ले चीफ, मार्शल ने कहा तो गुरोनो का चेहरा ना सिर्फ चीफ का लफ्ज़ सुनकर चमक उठा बल्कि उसकी आंखों में भी मुसरत की कंदीलें सी जल उठी। शी डॉग जैसी बैनुल अक़वामी और इंतहाई ताकतवर तंजीम का चीफ बन जाना उसके नज़दीक ख्वाहिशात के पूरा होने की इंतहा थी। इमरान अंथोनी से हेडक्वार्टर और इस मिनस मशीनरी के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ़ था। उसे अंथोनी ने बताया था कि मास्टर ग्रुप की हलाकत के बाद अब हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 ग्रुप बाकी रह गए हैं, एक तो सबमरीन सेक्शन और दूसरा स्पेशल ग्रुप, जो साथ ही ब्लू शार्क सेक्शन को भी कंट्रोल करता है। उसका बॉस गुरोनो है और स्पेशल ग्रुप के अरकान की तादाद 8 है, जो इंतहाई तरबियत याफ्ता और मुंशे हुए अफराद है और इनका इंचार्ज मार्शल है, जबकि सबमरीन सेक्शन के लोगों का ताल्लुक सिर्फ सबमरीन से ही है। अंथोनी ने हेडक्वार्टर और स्पेशल सेक्शन की पूरी तफसील बता दी थी। सफदर, तुम तनवीर और जवाना को साथ लेकर इस गुरोनो और इसके आदमियों का खात्मा करो। इमरान ने मुड़कर तनवीर और जवाना से मुखातिब होकर कहा। फिर इसका फिक्रा ख़त्म ही हुआ था कि यकलख्त एक साइड पर मौजूद मशीन में से हल्के स्याह रंग के धुएं के जैसे बादल से निकलने लगे। फिर इससे पहले कि इमरान और उसके साथी इसके धुएं के बारे में कुछ समझते, उन्हें महसूस हुआ कि उनके ज़हनों पर स्याह धुआं इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फैलता चला जा रहा है। पहले चंद लम्हों तक तो इमरान यही समझा था कि मशीन को अचानक किसी वजह से आग लग गई है और ये धुआं उसी आग का है, क्योंकि उसमें से बू भी धुएं जैसी ही आ रही थी। लेकिन जब इसके जहन पर धुएं ने तेज़ी से काबू पाने की कोशिश की तो वो समझ गया कि ये बेहोश कर देने वाली कोई गैस है और इसने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। इसलिए चंद ही लम्हों बाद उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह अंधेरे में जुगनू चमकता है, उस तरह उसके तारीक ज़हन में भी रोशनी के नुक्ते नमूदार हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले गए। और जब इसका शऊर बेदार हुआ तो उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे उसका ज़हन हैरत से चकरा कर रह गया, क्योंकि उसने देखा कि वो उसी टॉर्चिंग हॉल के फर्श पर पड़ा हुआ था जिससे वो निकल कर ऑपरेशनल सेक्शन में पहुंचे थे। उसके हाथ उसके अकब पे करके रस्सी से बांध दिए गए थे और उसके पैर भी बंधे हुए थे। वो बेख्तियार उठकर बैठ गया। वो चूँकि दीवार के करीब पड़ा हुआ था, इसलिए वो दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। उसके सारे साथी भी अब कसमसा रहे थे। उसी लम्हे एक आदमी सबसे आखिर में पड़े सफदर पर झुका हुआ था। उसने सफदर की नाक से एक लंबी गर्दन वाली शीशी लगाई। इमरान ने बिजली की तेज से अपने नाखूनों से ब्लेड्स को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसका ज़हन यह महसूस करके भाग से उड़ गया कि उसके नाखूनों से ब्लेड्स निकाल लिए गए थे। इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। उसके साथ ही उसने रस्सी की गांठ तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। उसी लम्हे सफदर पर झुका हुआ आदमी सीधा और से हाथ में पकड़ी हुई शीशी का ढक्कन बंद करके उसे जेब में डाला, दरवाजे की तरफ दौड़ा। तुम्हारा ताल्लुक स्पेशल ग्रुप से है शायद। इमरान ने उसके कदोकामत और उसके मखसूस अंदाज के साथ साथ अपने नाखूनों में से ब्लेड्स गायब होने की बिना पर अंदाज़ा लगाते हुए कहा, क्योंकि ये काम तरबियत याफ्ता अफराद ही कर सकते थे। और अंथोनी ने उसे बताया था कि स्पेशल ग्रुप तरबियत याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल है। हाँ, मेरा ताल्लुक स्पेशल ग्रुप से और तुम अभी लाशों में तब्दील होने वाले हो, इसलिए अगर कोई दुआ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। इस आदमी ने बड़े तंज़िया लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अगर ये बात थी तो फिर हमें होश में लाने की तकलीफ़ ही क्यों की तुम लोगों ने? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। चीफ का हुक्म था तुम लोगों को होश में लाया जाए ताकि तुम्हें हिब्रतनाक मौत मारा जा सके, उस आदमी ने कहा और तेज़ी से दरवाजे से बाहर चला गया। सारे साथी होश में आकर ना सिर्फ उठ कर बैठ गए थे, बल्कि उन्होंने इमरान की तरह दीवार से टेक लगा ली थी। मेरे नाखूनों से ब्लेड्स निकाल लिए गए हैं। ये तरबियत याफ्ता एजेंट ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए लामहला उन्होंने लॉजिंग स्टाइल की गांठ लगाई होगी और ये गांठ औरतों की उंगलियां आसानी से खोल सकती हैं। जूलिया और सालिया दोनों जल्द अज जल्द इस गांठ को तलाश करके खोलो, जल्दी करो। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने भी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन लॉजिंग स्टाइल की गांठ चूँकि कलाई पर काफ़ी ऊपर करके बांधी जाती थी, इसलिए वो किसी तरह भी इमरान की उंगलियों की जद में ना आ रही थी। मैंने गांठ खोल लिया। अचानक सालिया की आवाज़ सुनाई दी। मुबारक हो सफदर।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सारे साथी बेख्तियार हंस पड़े। मास्टर मैंने रस्सी तोड़ दिया। उसी लम्हे जवाना की आवाज़ सुनाई दी, ओह गुड शो, जल्दी करो, अपने पैर खोल लो। इमरान ने कहा, लेकिन उससे पहले कि वो अपने हाथ खोलकर अपने पैरों की तरफ बढ़ाता, अचानक दरवाजे में से मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल होने शुरू हो गए। उनके हाथों में मशीन गनें पकड़ी हुई थी और उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो अंदर दाखिल होती फायरिंग खोल देंगे। उनका ये अंदाज देखकर इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिया, लेकिन दूसरे लम्हे जब उसने अब उन्हें सामने दीवार के साथ लग कर खड़े होते देखा तो इतनी बात वो समझ गया कि ये फायरिंग अपनी चीफ के कहने पर ही करेंगे। ये 5 अफराद थे और इनकी तेज़ नज़रें बड़े चौकन्ना अंदाज में सामने फर्श पर दीवार से टेक लगाए बैठे हुए इमरान और उसके साथियों पर जमी हुई थी। जवाना और सालिया ने उन्हें इस तरह अचानक अंदर आते देखकर अपने हाथ दोबारा कब में काट लिए थे, लेकिन इमरान के नुक्ता नज़र से बहरहाल वो बेबस थे, क्योंकि इन दोनों के पैर बंधे हुए थे और अब उन्हें खोलने का वक्त नहीं था। लेकिन उसी लम्हे इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा जब उसकी उंगलियां उसकी कलाई पर मौजूद लॉजिंग गांठ तक पहुंच चुकी गई। वो चूंकि मुसलसल अपने दोनों बाजुओं को एक दूसरे की मुखालफ सिमत में हरकत दे रहा था, इसलिए रस्सियाँ आहिस्ता खिसक कर हाथों की तरफ इकट्ठी होती जा रही थी और यही वजह थी कि अब रस्सी की गांठ तक इसकी उंगलियां पहुंच गई थी। इमरान ने पलक झपकने में गांठ को खींचकर रस्सी खोल ली, लेकिन उसके पैर अभी तक बंधे हुए थे और मशीन गन बरदार चूँकि हॉल की दूसरी दीवार के साथ खड़े थे, इसलिए उनके दरमियान फासला भी काफ़ी था और वह किसी तरह भी जंप लगाकर उन तक ना पहुंच सकता था। उसी लम्हे 3 आदमी एक दूसरे के पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हुआ। उनमें से दूसरे नंबर पर आने वाला अंथोनी था, लेकिन उसका चेहरा लटका हुआ था। हा, देखा अंथोनी, तुमने देखा मेरे ग्रुप ने कैसे इन लोगों पर कब्जा किया है, वरना तुम और चीफ जिम स्कॉट तो शी डॉग का हेडक्वार्टर ही इनके हवाले कर चुके थे। सबसे आगे आने वाले ने इंतहाई फ़ाखराना लहजे में मुड़कर अंथोनी से मुखातिब होकर कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो ग्रोनो। एंथोनी ने आहिस्ता से जवाब दिया, चीफ ग्रोनो कहो वरना मेरा तुम्हारा दिए हुए हलफ पर से यकीन उठ जाएगा, फिर मैं तुम्हें उनके साथ बांध कर बिठा दूंगा, समझे। ग्रोनो ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। यस चीफ ग्रोनो, एंथोनी ने कहा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वह इंतहाई मजबूरी के आलम में ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। तुम्हारा नाम ग्रोनो है और तुम अब शी डॉग के चीफ हो। अचानक इमरान ने कहा तो वो चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। जिम स्कॉट का क्या हुआ, क्या तुमने उसे हलाक कर दिया? इमरान ने पूछा। नहीं, वो चूँकि पहले से बेहोश था, इसलिए गैस फायर होते ही तुम सब बेहोश हो गए थे, अलबत्ता वो हलाक हो गया है, ग्रोनो ने जवाब देते हुए कहा। मेरा तो ख्याल था कि जिम स्कॉट के बाद सीनियर एंथोनी होगा, क्योंकि ये ऑपरेशनल सेक्शन का इंचार्ज है और ऑपरेशनल सेक्शन इस पूरे हेडक्वार्टर को कंट्रोल कर सकता है। इमरान ने एंथोनी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। दरअसल उसने एंथोनी के रवैये से ये अंदाज़ा लगाया था कि एंथोनी किसी मजबूरी की वजह से खामोश है और वह अब एंथोनी की इस मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहता था। इमरान की बात करते ही एंथोनी ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। हाँ, एंथोनी वाकई मुझसे सीनियर था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब ताकत का तवाज़ुन मेरे हक में है। मैंने एंथोनी का भी खात्मा करने का सोच लिया था, लेकिन एंथोनी ने हलफ उठाकर मुझे यकीन दिलाया कि वो सारी उम्र मेरा फरमाबरदार रहेगा, इसलिए मैंने इसकी जान बख्श दी है। ग्रोनो ने फ़ाखराना लहजे में कहा। एंथोनी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। लेकिन क्या ये तुम्हारी हक तलफी शी डॉग की तंजीम के पूरी दुनिया में फैले हुए ग्रुप्स तस्लीम कर लेंगे? जाहिर है एंथोनी जब तुमसे सीनियर है तो फिर चीफ बनना भी एंथोनी का हक है, जिस तरह लॉर्ड जट की मौत के बाद जिम स्कॉट चीफ बन गया था। इमरान ने कहा। तुम एंथोनी को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो, लेकिन ये हकीर क्या मेरा बिगाड़ सकता है? बाकी ऋषि डॉग तो उसे मैं खुद संभाल लूँगा, फिर इस आदमी का खात्मा कर दूंगा जो मेरे मुकाबला आने की जुर्रत करेगा। ग्रोनो ने ऐसे लहजे में कहा कि एंथोनी का लटका हुआ चेहरा बेख्तियार आग की तरह जल उठा। फिर जिस तरह बिजली चमकती उस तरह अचानक एंथोनी ने झपट कर एक मशीन गन बरदार के हाथों से मशीन गन झपटना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो फील्ड का आदमी ना था, जबकि यहाँ मौजूद ग्रोनो और इसके साथ ही तरबियत याफ्ता थे, इसलिए वो मशीन गन तो ना झपट सका। अलबत्ता उसके साथ खड़े हुए आदमी ने पूरी कुव्वत से उसकी पुष्ट पर वार किया और एंथोनी चीखता हुआ चलकर मुंह के बल इमरान की तरफ दौड़ता हुआ आया, लेकिन उससे पहले कि वह ज़मीन पर गिरता, अचानक इमरान के दोनों हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में और इसकी तरफ दौड़ता हुआ आने वाला एंथोनी इमरान के दोनों हाथों का धक्का खाकर चीखता हुआ उलट कर रकब में खड़े ग्रोनो और इसके साथी से जा टकराया। एंथोनी को वापस उछालती इमरान यकलख्त अपनी जगह से उछला और उसकी सीधी बंधी हुई टांगें नेज़ों की तरह एक आदमी के सीने से टकराई। इमरान कोहलों के बल ज़मीन पर गिरा ही था कि उसका जिस्म कलाबाजी खा गया, और न सिर्फ वो कलाबाजी खाकर नीचे गिर चुका था, बल्कि जब वो कलाबाजी खाकर सीधा हुआ तो उसके साथ हाथ में एक मशीन गन मौजूद थी। और जिस वक्त इमरान कलाबाजी खा रहा था उसी लम्हे जवाना और सालिया दोनों बिजली की सी तेज़ी से उठकर खड़े हो गए। फिर इन दोनों ने उछलकर करीब खड़े हुए मशीन गन बरदारों पर हमला कर दिया। उसी लम्हे जवाना और सालिया दोनों बिजली की तेज से उठकर खड़ी हुई। फिर इन दोनों ने उछलकर करीब खड़े हुए मशीन गन बरदारों पर हमला कर दिया और इसके साथ ही मशीन गन की तड़तड़ाहट से टार्चिंग रूम गूंज उठा। इस तड़तड़ाहट के साथ साथ इंसानी चीखें भी शामिल थी। इमरान ने कलाबाजी खाकर
سیدھا ہوتے ہی مشین گن کا فائر کھول دیا تھا، لیکن عمران کے ساتھ ساتھ گرونوں کے آدمیوں میں سے ایک آدمی نے بھی مشین گن کا فائر کھول دیا تھا، اور اس آدمی کی گن فائر کی زد میں سامنے دیوار کے ساتھ بندے بیٹھے تنویر، جولی اور کیپٹن شکیل آ گئے تھے۔ گو جوانا نے بجلی کی سطح سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے مشین گن اڑا لی تھی، لیکن اس کے باوجود تنویر، جولی اور کیپٹن شکیل تینوں گولیاں کھا کر فرش پر گرے بری طرح تڑپ رہے تھے۔ عمران کی آنکھوں میں اپنے ساتھیوں کی اس حالت میں دیکھ کر خون اتر آیا اور پھر کمرہ واقعی مقتل کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، جبکہ اس دوران جولیا، تنویر، کیپٹن شکیل تینوں ساکت ہو چکے تھے۔ اچانک صفدر ہاتھ مار دینے سے فائرنگ سے بچ گیا تھا۔ صفدر جوانا کے اچانک ہاتھ مار دینے سے بچ گیا تھا، ورنہ اگر جوانا ایک لمحے کی بھی دیر کر دیتا تو صفدر مشین گن کی برسٹ کی زد میں آ چکا ہوتا۔ عمران صاحب، ان کی حالت بے حد خراب ہو رہی ہے۔ اسی لمحے صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ دیوانوں کے سے انداز میں چیخ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ چونکہ عقب میں بندھے ہوئے تھے، اسی لمحے وہ انہیں پکڑ کر نہ لے جا سکتا تھا۔ عمران نے فائرنگ ختم کی، اس کے ساتھ اس نے بجلی کی تیز سے جھک کر اپنے پیروں کی گانٹھ کھولی، پھر دیوانہ وار اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا۔ اوہو، یہ تو مار رہے ہیں! عمران، جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا، چیخ پڑا۔ آپریشنل سیکشن کی الماری میں یہاں سے میں نے مشین گن نکالی تھی، وہاں ایک بڑا سا میڈیکل باکس موجود ہے۔ یک لک صفدر نے چیختی ہوئی کہا۔ میں لے آتا ہوں، جوانا نے کہا، مجھے اپنے پیروں کی رسی کھول چکا تھا۔ پھر وہ دیوانوں کے سے انداز میں بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ صالحہ بھی اب قریب آ چکی تھی، اس کا چہرہ بھی ان تینوں کی حالت دیکھ کر بری طرح بگڑ گیا۔ مجھے کھولو صالحہ، مجھے کھولو، یک لک صفدر نے کہا۔ صالحہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، جبکہ عمران ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا۔ اسی لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر جوانا ایک میڈیکل باکس اٹھائے وہاں پہنچ گیا۔ عمران نے میڈیکل باکس کھولا اور پھر تیزی سے انجیکشن نکال کر وہ اپنے صفدر اور انجیکشن لگانے شروع کر دیے، جبکہ صفدر اور صالحہ مل کر ان کے زخم دھونے شروع کر دیے۔ کاش یہاں کوئی ہاسپٹل ہوتا، انہیں خون لگانا پڑے گا، ان کے آپریشن ہو گئے، یہ کاش۔ عمران نے لاشعوری طور پر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک جدید ترین ہسپتال ہے، لیکن ایک شرط پر بتا سکتا ہوں، تم مجھے یہاں کا چیف بنا دو۔ اچانک دروازے کے قریب بوندے منہ پڑے ہوئے انتھونی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ زخمی بھی نہیں ہوا تھا، شاید اس طرح گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا، یا فائرنگ سے بچنے کے لیے بھی اس حرکت پڑا تھا۔ کہاں ہے جلدی بتاؤ کہاں ہے؟ میرا وعدہ ہے کہ تم ہی شی ڈاگ کے چیف ہوگے، میرا وعدہ ہے۔ عمران نے یک لک چیختے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، لیکن وہاں گرونوں کے ساتھی بھی ہوں گے۔ انتھونی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے یک لک ٹھٹک کر کہا۔ وہاں 2 آدمی تھے، میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ جوانا نے کہا۔ آؤ پھر آؤ، انہیں اٹھا لاؤ۔ انتھونی نے کہا تو صفدر اور جوانا نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو اٹھا لیا، جبکہ صالحہ نے جولیا کو اٹھا لیا، جبکہ عمران انتھونی کو بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا دوڑ کر باہر نکلا۔ جلدی کرو، دکھاؤ ہمیں کہاں ہے ہسپتال، جلدی کرو۔ عمران کی حالت واقعی گہر ہو رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل کے لیے ایک لمحہ قیمتی ہے، وہ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتے تھے۔ شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر کے ایک علیحدہ حصے کے برآمدے میں جوانا بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، جبکہ انتھونی ایک کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں جدید ترین آپریشن تھیٹر کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے تقریباً تمام آلات بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ہسپتال سے متعلق انتہائی جدید ترین مشینری آلات بھی موجود تھے۔ جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل کے آپریشن کے دوران خون کی بوتلوں کی بھی اشد ضرورت تھی، اس لیے عمران نے سب سے پہلے خون کا بندوبست کیا۔ اس لیے عمران اور جوانا دونوں نے خون دیا تھا، جبکہ صفدر اور صالحہ دونوں کا خون ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پھر خون کا بندوبست ہو جانے کے بعد عمران، صفدر اور صالحہ سمیت تنویر، جولیا اور کیپٹن شکیل کے جسموں میں داخل ہو جانے والی گولیاں نکالنے کے لیے آپریشن میں مصروف ہو گیا، جبکہ جوانا اور انتھونی باہر آ گئے تھے۔ عمران نے جوانا کا اشارہ کر دیا تھا جبکہ جوانا اور انتھونی باہر آ گئے تھے۔ عمران نے جوانا کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ انتھونی کا خیال رکھے، لیکن انتھونی خود ہی باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کہیں جانے کی کوشش ہی نہ کی تھی، اس لیے جوانا کو اسے روکنے کی ضرورت نہ پڑی تھی، اور جوانا انتہائی بے چینی کے عالم میں وہاں ٹہل رہا تھا، کیونکہ جو حالت وہ تنویر، کیپٹن شکیل اور جولیا کی دیکھ چکا تھا، اسے ان کی صحتیابی مشکوک نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹہلنے کے ساتھ ساتھ دل میں ان کی صحتیابی کی دعائیں بھی مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، عمران باہر آیا، اس کا چہرہ بے حد متوحش تھا۔ کیا ہوا ماسٹر؟ جوانا نے انتہائی بے چینی سے پوچھا۔ خون کی 2 بوتلیں اور چاہیے، فوری۔ عمران نے کہا۔ آپ میرے جسم سے 10 بوتلیں اور نکال لیں۔ جوانا نے کہا۔ نہیں، بیک وقت اتنی بوتلیں نہیں لی جا سکتی، اس لیے تو میں پریشان ہوں۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر میرا خون آپ کے کام آ سکے تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچانک انتھونی نے کہا۔ اوہو، تمہارے خون کا گروپ تو ہم نے چیک ہی نہیں کیا، میرے ساتھ آؤ۔ عمران نے کہا تو انتھونی تیزی سے اٹھا اور عمران کی طرف بڑھ گیا۔ وہ عمران کے پیچھے کمرے کے اندر چلا گیا۔ جوانا نے ایک بار پھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ عمران کا متوحش چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں بے اختیار آندھیاں سی چلنے لگ گئی تھی۔ اس نے عمران کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگایا تھا کہ حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ اس
उसका दिल बे इख्तियार ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया था। फिर थोड़ी देर बाद अंथोनी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। जवाना ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, फिर कुर्सी पर बिठा दिया। वो उनका मुखालिफ था, लेकिन उसने ना सिर्फ खुद अस्पताल तक उनकी रहनुमाई की बल्कि असबार खून भी देकर आ रहा था। इस लिहाज से वो इनका मोहसिन भी था। अंथोनी कुर्सी पर बैठ गया तो जवाना ने एक बार फिर बरामदे में टहलना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। इमरान बाहर आया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और मुस्कुराहट थी। क्या हुआ मास्टर? जवाना ने इंतहाई बेचैनी से पूछा। अल्लाह ताला का करम हो गया है, अंथोनी के खून ने काम दिखाया। अब वो तीनों खतरे से बाहर हैं। उसके अलावा अगर अंथोनी इस अस्पताल तक हमारी रहनुमाई ना करता तो हमारे तीनों साथी शायद ना बचते। बहरहाल अल्लाह ताला का करम है, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ अंथोनी। इमरान ने आगे बढ़कर अंथोनी के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, आपने जिस तरह और जिन हालात में ग्रोनों के सामने मेरी हिमायत की, हालांकि हालात के मुताबिक आपको ग्रोनों की खुशामद करनी चाहिए थी, उससे मेरे दिल में आपकी अजमत का नक्श जम गया था। मुझे एहसास हो गया था कि आप हमारे दुश्मनी सही, लेकर बहरहाल अच्छे आदमी और इन हालात में भी सच बोल रहे थे। अंथोनी ने जवाब दिया तो इमरान ने मुस्कुरा कर उस बात में सर हिला दिया। जवाना तुम यहीं रुको, मैं अंथोनी के साथ ऑपरेशनल सेक्शन में जा रहा हूँ। आओ अंथोनी, ताकि अब हमारे दरमियान मजीद मुज़ाकरात हो जाए। इमरान ने कहा। मुज़ाकरात? अंथोनी ने चौंक कर कहा। इसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। घबराओ नहीं, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। आओ, इमरान ने कहा। फिर अंथोनी को लेकर अस्पताल सेक्शन से निकलकर दोबारा ऑपरेशनल सेक्शन में पहुंच गया। तुम क्या कहना चाहते हो? अंथोनी ने और छुपाते हुए कहा। इत्मीनान से बैठ जाओ और मुझे बताओ कि अब तुम्हारे शी डॉग का चीफ बनने में कौन कौन सी रुकावट बाकी रह गई है। इमरान ने शीशे के कैमरे में दाखिल होकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रुकावट तो कोई नहीं, बशर्ते कि तुम वादा पूरा करो। अंथोनी ने आहिस्ता से कहा। उसे शायद अभी तक शक तक शायद इमरान उसे हलाक कर देगा और हेडक्वार्टर तबाह कर देगा। देखो अंथोनी, ये दुरुस्त है कि हमारा मिशन हेडक्वार्टर यानी शी डॉग का हेडक्वार्टर तबाह करना है, और तुमने देख लिया कि हम अपनी जानों पर खेल कर भी अपना मिशन मुकम्मल करने से दुरेग नहीं करते। और इस वक्त जो पोजीशन है, मेरा ख्याल है कि अब सब मेरीन सेक्शन के आदमी ज़िंदा रह गए हैं, लेकिन वो फ़नी माहिरीन है, फील्ड के आदमी नहीं है, इसलिए उन्हें आसानी से हलाक किया जा सकता है, और मैं यकीनन ऐसा ही करता। लेकिन तुमने जिस तरह अचानक मेरे साथियों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ना सिर्फ आज खुद अस्पताल तक रहनुमाई की, बल्कि जिस तरह तुमने मेरे साथियों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपना खून दिया है, उससे मेरे दिल में तुम्हारे लिए हकीकतन नरम गोशा पैदा हो गया है। मैं अपने साथियों के जिस्मों पर एक खराश के बदले इस जैसे कई हेडक्वार्टर नज़रअंदाज कर सकता हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने करम किया है और मेरे साथियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे से बाहर हैं। लेकिन मुझे इस कदर ज़ख्मी है, उन्हें यहाँ से जाने के लिए कम से कम मुझे 1 हफ़्ता ठहरना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि इस दौरान तुम्हारे हेडक्वार्टर का कोई ग्रुप अचानक हम पर हमला कर दे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ ताकि तुमसे खुल कर बात हो सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुम यहाँ के सीनियर आदमी हो और यहाँ की तमाम मशीनरी के इंचार्ज भी हो, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम हेडक्वार्टर में शी डॉग के चीफ बनने के हकदार हो। लेकिन शी डॉग बहरहाल मुजरिम तंजीम है, और मुजरिम तंजीम भी ऐसी कि जो एटमी असले को चोरी करके सप्लाई करती है। सुपर पावर्स जो ऐसे असले की चोरी का सदमा सह जाए तो सह जाए, लेकिन पाकिस्तान और इस जैसे दूसरे इस्लामी ममालिक से ऐसे असले की चोरी उनको बांध कर उनके दुश्मनों के सामने डालने के मुतरादफ है। इस लिहाज से शी डॉग पाकिस्तान की सलामती और बका की दुश्मन है। मैंने तुम्हारे असल चीफ लार्जर से भी यही कहा था कि वो अब अगर मुझे यकीन दिला दे कि शी डॉग पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं हेडक्वार्टर के खिलाफ हरकत में नहीं आऊँगा, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो हलाक हो गया। इसके बाद जेम्स कार्ड चीफ बन गया। मैंने एक मौका उसे भी ऑफ़र किया, लेकिन उसने शायद तुम्हारे मशवरे से ये जवाब दिया कि वैसा कोई वादा नहीं कर सकता। शायद उससे तुमने यकीन दिलाया था कि शी डॉग का हेडक्वार्टर नाकाबिल तस्खीर है, चुनांचे मुझे मजबूरन एक्शन में आना पड़ा। तुमने देख लिया कि हमने क्या किया। अगर हमारे साथी इस तरह ज़ख्मी ना होते तो शायद अब तक हेडक्वार्टर तबाह हो चुका होता। लेकिन मैंने अब एक फ़ैसला कर लिया कि अगर तुम चीफ बनकर हलफ दे दो कि आइंदा शी डॉग पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ अपना हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी, तो मैं अपने साथियों समेत खामोशी से वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये बात याद रखना कि फिर कभी शी डॉग ने वादा खिलाफ़ी की तो फिर जो होगा उसका तुम तसव्वुर आसानी से कर सकती हो। इमरान ने शायद अंथोनी के चेहरे पर शकूक व शुबहात की परछाइयाँ देखकर पूरी तफसील से बात की थी। आपका नाम इमरान है शायद? अंथोनी ने कहा। हाँ, मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, आपने जिस तरह कार्रवाई की और जिस तरह आप लोगों ने अपनी जानों पर खेल कर काम किया, सिर्फ इसलिए आप अपने मुल्क और उसके रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, हालांकि आपके सामने कोई ज़ाती गरज ना थी। इससे मैं ज़ाती तौर पर बेहद मुतासर हुआ और मैंने मौत को हकीकतन करीब से देखा है कि यकीन करें अब मेरी नज़र में दुनिया और उसकी दौलत हकीर हो गई है। लॉर्ड लार्जेंट और जेम्स कार्ड कहाँ हैं? उन्हें इस दौलत ने क्या दिया है? और अब आपने जिस तरह अपने साथियों को बचाने के लिए जदोजहद किया और आपके चेहरे पर जो तासुरात मैंने देखे हैं, यकीनन मुझे आप पर आपके साथियों पर रश्क आ रहा है। इसके बरखिलाफ़ हम जराइम पेशा लोगों को भी आपने देखा है कि ज़रा सा मौका मिलते ही उन्होंने किस तरह कार्रवाई की है। मुझे मालूम था कि मुझे ज़िंदा रखने पर मजबूर था, क्योंकि मेरे बगैर इस हेडक्वार्टर को कोई नहीं चला सकता था, वरना वो यकीनन मुझे भी गोली मार देता। मैंने फ़ैसला किया कि मैं चीफ बनने के बाद शी डॉग तंजीम को ख़त्म कर दूंगा और हेडक्वार्टर को खुद ही तबाह कर दूंगा, और ये काम आपकी निस्बत में ज़्यादा आसानी से कर सकता हूँ। पूरी दुनिया में मुझे शी डॉग की असास और दौलत को इकट्ठा करके उसे किसी रिफाई काम में लगा दूंगा।
پھر اپنی آئندہ کی زندگی خاموشی سے گزار دوں گا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت میں میرے دل کی آواز ہے، انتھونی نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے انتھونی کے لہجے میں سچائی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ تم اگر اس فیصلے پر قائم رہو تو اپنی باقی زندگی اطمینان سے گزار سکتے ہو۔ جرائم پیشہ شخص کے پاس دولت کے انبار تو ہو سکتے ہیں، حکم ماننے والے ہزاروں افراد ہو سکتے ہیں، لیکن اسے سکون نہیں مل سکتا اور اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اگر تم ایسا کر سکو تو میری طرف سے دعوت ہے کہ تم پاکیشیا آ جاؤ۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں وہاں کسی اچھے بزنس میں سیٹ کر دوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو انتھونی تیزی سے اٹھا اور اس نے انتہائی جذباتی انداز میں عمران کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی مجھے پاکیشیا میں رہنے دیں گے؟ انتھونی نے کہا تو عمران نے ہاتھ چھڑوا کر اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ اگر تم اچھا بننے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں جرائم کی دلدل سے نکلنے میں تمہاری مدد کروں، اس لیے مطمئن رہو۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہو تو میں بھی اپنی بات پر قائم رہوں گا، عمران نے کہا تو انتھونی کا چہرہ مسرت سے بے اختیار کھل اٹھا۔